तो कैलकुलेट करके वो पहला शायद कैलकुलेशन मिस्टेक થઈ मैंने बोला अंदर की बैठे ध्रुव तू इधर है। हाँ ओके दिखा नहीं 20 का दिया है। 12 अंदर जाओ તારે જોવા છે મોટા વિડિયો સર फोकस देख लो। चलो डी प्लस एफ डी प्लस एन आर डी डी माइनस वन पूरा लिखना है। चलो टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू एडजस्टमेंट। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 24 सब मार्क करो सब लोग। पेज 135 जब वो पड़ी गया तो अभी कैलकुलेशन मिस्टेक पेज 135 sum number 24 Dhanashri stores starting with Ir Patel. Tell me purchases, opening stock, debtors, Daksh wages, Minad salaries. How will you determine an item whether it goes under trading or P&L? What is the Maha Mantra? Factory, purchase or production. Purchase or production related. Goods का purchase or production का expense will go to trading. Rest all will go to P&L. Okay. Heat, land and building, plant and machinery आगे समीक्षा, furniture, advertisement, Veda 15% investment, asset 15% indicates hidden adjustment. Rena insurance, P&L debit cash in hand, asset remand, rent. 7 months दिख रहा है आपको बाजू में? 7 months देखा आपको रेंट के बाजू में? What is that? Another hidden adjustment. क्या इंडिकेट करता है ये? 5 months it is outstanding, right? 12 months का पे करना है ना in the absence of any information. So if you have paid it for lesser than 12 months, then it is outstanding. If you have paid for more than 12 months, then it is prepaid. ये टाइम पीरियड वाला hidden adjustment था. Power and fuel था. Very good. Homework सब में भी था power and fuel. Remember, water, power, fuel. It is always trading debit. Drawings, Srushti. Less from capital. Interest on bank loan. P&L debit. Very good. This interest you have already paid, right? ये जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ना, ये आपने ऑलरेडी पे किया हुआ. That's already paid interest. So P&L debit. Simply P&L debit. Got it? આમાં કાંઈ જ નહીં કરવાનું. પછી hidden adjustment કરીને we'll find out. This will directly go to P&L debit. किसी में एडलेस कुछ नहीं. Directly P&L debit. This one. Capital दिया. Liability sales. Trading credit. Creditors. Kavya. Liability 10% bank loan. Liability again another percentage sign. Third hidden adjustment in this problem. Can you see guys? एक था investment, एक था rent और ये तीसरा आया 10% bank loan. Okay, we'll find out. We'll make 3 working notes related to the same. Hetri, commission. You only said. Okay, sorry. Commission. P&L. C, credit side because it is on credit side. Discount. Sneha. Very good. Interest on investment. Block it. 135. Interest on investments. Sorry. Trading credit. Interest on investment. P&L debit. Trading credit में एक ही इनकम जाता है. Which income goes under trading credit? P&L credit ही तो बोला. C. P&L credit. TC नहीं, P&L credit. एक ही इनकम ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है. What is that?
सेल्स को छोड़ के सब P&L क्रेडिट. क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? Closing store, less from assets and add to, sorry, not less, add to assets and Trading credit and assets. Okay, trading credit and assets. Outstanding expenses, wages and salaries. Plus expenses and liabilities. Add to expense and liability. Don't talk. Guys, provide RDD at the rate of 5% on debtors. Karthik? NRDD, so add to bad debts and minus from debtors. Add to bad debts and minus from debtors. उसके आगे दिख रहा है आपको? Provide for 2% provision for discount on debtors. Discount on debtors. This is something new. Provision for discount on debtors. Provision for discount on debtors. इसको कहा जाता है NRFDD. NRFDD का फुल फॉर्म है न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. ओके, वैसे NRDD का भी वही होता है, लेकिन डिस्टिंक्शन करने के लिए इसमें खाली एक F डाला हुआ है. NRDD इज न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड NRFDD इज न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इट इज ऑन द सेम लाइंस ऑफ बैड डेट्स. जैसे बैड डेट्स में 4 आइटम्स होते हैं, BD, FBD, NRDD, ORD. वैसे डिस्काउंट के लिए भी 4 आइटम्स, उसके जगह 3 हो जाते हैं. बैड डेट के जगह यू हैव डिस्काउंट अलाउड. जैसे बैड डेट आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड भी आपका एक्सपेंस है. बैड डेट किधर दिखता है तो ट्रायल बैलेंस में, डिस्काउंट अलाउड भी किधर दिखेगा तो ट्रायल बैलेंस में. बैड डेट का कितना इफेक्ट होता है? एक इफेक्ट होता है. तो डिस्काउंट अलाउड का भी एक इफेक्ट होगा. ये किधर डालते हो बैड डेट? आप फॉर्मूला में डालते हो, P&L डेबिट साइड. व्हाट फॉर्मूला यू राइट? 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORD. तो ये डिस्काउंट अलाउड का भी ऐसा ही फॉर्मूला जाएगा P&L डेबिट में, 2 डिस्काउंट अलाउड. ओके, plus FBD. What is FBD? Further bad debt. Unrecorded bad debts. Where does it appear? Adjustments. So it has got how many effects? 2 effects. उसके जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है. Further discount allowed जैसी कोई चीज नहीं. तो पहले bad debt की जगह you have discount allowed. जैसे bad debt आपका लॉस है, discount allowed भी एक तरह का एक्सपेंस है. बैड डेट का एंट्री क्या होता है? बैड डेट टू डेटर. डिस्काउंट अलाउड का एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. बैड डेट आपको जग मार के देना पड़ता है क्योंकि डेटर के पास पैसे नहीं है, तो आपका जग मार के एक्सपेंस हो गया. डोंट हैव अ चॉइस. बट डिस्काउंट अलाउड आप मर्जी से दे दो क्योंकि उसने टाइम से पहले पैसा दिया. सो मर्जी से किया हुआ अलाउड, दैट इज डिस्काउंट अलाउड. सिमिलर टू बैड डेट्स. गॉट इट? नाउ बैड डेट, ट्रायल बैलेंस, डिस्काउंट. फर्दर बैड डेट जैसा कुछ नहीं है. NRDD के जगह होता है NRFDD. व्हाट इज NRDD? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. ये क्यों क्रिएट किया जाता है? व्हाई डू यू क्रिएट इट? नेक्स्ट ईयर का लॉस अभी से दिखा दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स होंगे तो अभी से दिखा दिए. ऐसे आपको लगता है कि शायद कोई डेटर नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट मांगेगा, टाइम से पहले दे देगा, अलाउ करना पड़ेगा, तो अभी से वो डिस्काउंट दिखा दो, वो लॉस अभी से दिखा दो. तो जैसे आपने बैड डेट के लिए लॉस दिखा के रखा है, वैसे ही ये किसका रिजर्व क्रिएट करते हो? डिस्काउंट अलाउड. यू क्रिएट दिस रिजर्व फॉर डिस्काउंट अलाउड. So this is called NRFDD, new reserve for discount on debt. New reserve for discount on debt. एंट्री वही है, P&L to NRDD के जगह P&L to NRFDD. और क्यों क्रिएट किया हुआ है कि फ्यूचर में जो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा वो खर्चा आप अभी से दिखा दो. सेम थिंग, सेम इफेक्ट. NRDD क्या करते हो आप? इधर ऐड करते हो, तो वैसे NRFDD क्या करोगे? इधर ऐड करते हो. टू डिस्काउंट अलाउड प्लस NRFDD. बट जैसे NRDD एडजस्टमेंट में होता है, जैसे NRFDD भी किधर होता है? तो हाउ मेनी इफेक्ट्स? व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ NRDD? डेटर्स में से लेस. तो व्हाट विल बी द सेकेंड इफेक्ट ऑफ NRFDD? डेटर्स में से लेस. अभी दुविधा आ गई, पहले क्या करने का? NRDD की NRFDD.
एनआरडी, पहले एफबीडी फिर एनआरडीडी फिर लास्ट में एनआरएफ। पहले एफबीडी फिर एफबीडी मतलब बैड वाले हट गए, जो नहीं देने वाले वो हट गए। फिर जो डाउटफुल है, शायद देंगे शायद नहीं देंगे, आपको लगता है नहीं देंगे, उनको भी आप, वैसे तो लाइबिलिटी है एनआरडीडी, लेकिन माइनस करके दिखा रहे हो कि बोल रहे हो कि ये लोग भी पैसा देने वाले नहीं। अब डिस्काउंट किसको अलाउ करना पड़ेगा? वही डेटर को अलाउ करना पड़ेगा जो लोग पैसा देंगे, तो उस पे यू क्रिएट एनआरएफडी। इसलिए ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एफबीडी माइनस करने का, फिर एनआरडीडी और उसके बाद एनआरएफ। जैसे एनआरडीडी इज अ लाइबिलिटी, एनआरएफडीडी इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। प्रेजेंटेशन के लिए दोनों को डेटर से माइनस करके दिखाएं। एंड बाकी फंडा सेम है। इस साल का एनआरडीडी नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है? तो लास्ट ईयर का एनआरडीडी बनेगा ये साल का, तो लास्ट ईयर का एनआरएफडीडी बनेगा ये साल का। और जैसे ओआरडीडी किधर अपियर होता है? ट्रायल बैलेंस में। हाउ मेनी इफेक्ट्स? 1, वेयर इधर से आपका लॉस कम करने में मदद करता है। वैसे ओआरएफडीडी किधर अपियर होएगा आपका? ट्रायल बैलेंस में। कितना इफेक्ट? 1। क्या करेगा ये? लॉस को कम करने में मदद करेगा। तो एवरीथिंग इज सेम, खाली नाम चेंज कर दिया हमने। बीडी के जगह क्या आ गया? डिस्काउंट डाला। बैड डेट्स के जगह डिस्काउंट डाला। फर्दर बैड डेट की जगह कुछ नहीं। एनआरडीडी के जगह एनआरएफ, ओआरडीडी के जगह एफपीडी के जगह न्यू डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो, लेकिन जनरली देते नहीं, जनरली देते नहीं। डेबिट में एनआरडीडी ओआरडीडी के बाद एफपीडी आएगा। पीएनएल डेबिट में, पीएनएल डेबिट में तो कोई भी ऑर्डर में करो, ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला ही, हाँ दोनों लिखना है। नॉर्मली आप खाली यही फॉर्मूला लिखते हो। अभी ये सब में आप ये फॉर्मूला भी लिखो, क्यों? क्योंकि एनआरएफडी। तो बैड डेट का फॉर्मूला तो हर एक सब में लिखना ही लिखना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला उसी सब में लिखना है जिस सब में एनआरएफडी दिया, जैसे कि ये सब ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई भी ऑर्डर में लिखो चलेगा। पीएनएल डेटर में माइनस करते हुए याद रखो, पहले एफपीडी फिर एनआरडीडी फिर एनआरएफ। डेटर्स में से माइनस, हेलो, डेटर में से तीनों माइनस ही होएगा। एफपीडी भी माइनस, एनआरडीडी भी माइनस, एनआरएफडीडी भी माइनस। क्यों माइनस समझा? हेलो, एफपीडी तो लॉस ही है ना, इसलिए माइनस। एनआरडीडी एंड एनआरएफडीडी आर लाइबिलिटीज, बट प्रेजेंटेशन के लिए एसेट में से माइनस। और इधर फॉर्मूला में वही है, एफबीडी ऐड होता है, एनआरडीडी ऐड होता है, वैसे एनआरएफडीडी ऐड होता है। ओआरडीडी माइनस होता है क्योंकि लॉस को कम करता है, तो ओआरएफडीडी भी माइनस होगा क्योंकि ये लॉस को कम करता है। समझ में आ रही है बात? मुझे बताओ ओआरडीडी किधर अपियर होता है क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस। ओआरएफडीडी भी ट्रायल बैलेंस। ओके, एनआरडीडी एडजस्टमेंट, एनआरएफडीडी भी। इधर जो आपको दिख रहा है व्हाट इज दैट? एनआरएफडीडी। क्वेश्चन में ओआरएफडीडी दिया है कहीं पे? होता तो ट्रायल बैलेंस में दिख जाता। ओके, वो कुछ नहीं दिख रहा। सो कैन यू टेल मी द टू इफेक्ट्स ऑफ एनआरएफडीडी? एक तो डेटर में से माइनस और डिस्काउंट अलाउड में ऐड है ना। डिस्काउंट अलाउड, अच्छा अलाउड नहीं, ठीक, तो डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली लिख दो। ओके, मतलब फॉर्मूला लिख के बाकी दोनों नील करके भी लिख सकते हो, मैं बताता हूँ सब। ओके, फॉर्मूला लिखो, बाकी दो नील कर दो, डिस्काउंट अलाउड ओआरएफडीडी नील कर दो, एनआरएफडीडी में अमाउंट फिलअप करो। सर खाली डायरेक्टली टू एनआरएफडीडी लिखा तो भी चलेगा। सर डेटरમાંથી એફબીડી માઈનસ કરીને આપણે કહે છે એનઆરડીડી રિમેઇન પર બોલते हैं, तो ये एनआरएफडीडी पर रिमेन पर बोलता है ना, रिमेनिंग पर जो बताता हूँ सब के साथ। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, मशीनरी बाय 10%। हर्ष? माइनस फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। माइनस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट। देयर आर 3 वर्किंग नोट्स स्टार्टिंग विद रेंट, हिडन एडजस्टमेंट। पहला वाला बताओ मेरे को, रेंट का क्या करोगे आप? आउटस्टैंडिंग रेंट, 5,000। रेंट फॉर 7 months कितना पे किया आपने? 7,000। दिस इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स गाइस? 7 महीने का कितना पे किया आपने? 7,000, राइट? हेलो,
एक्चुअली 12 महीने का होना चाहिए, तो 5 महीने का क्या हुआ, कितना होएगा 5 months का? दिस इज नथिंग बट व्हाट, outstanding rent. Is that clear? What are the two effects of outstanding rent? Add to rent and liability. ये हो गया आपका पहला वर्किंग नोट, आउटस्टैंडिंग का खत्म, सिंपल। दूसरा और तीसरा जो है वो आपका लोन और इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट का खत्म कर, क्या दिया है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? आई थिंक यू हैव बीन गिवन 15% इन्वेस्टमेंट 10,000। कैन यू सी दैट? 15% इन्वेस्टमेंट 10,000 का आपने किया हुआ। पहला स्टेप क्या करते हो आप? कैलकुलेट योर ओन इंटरेस्ट। 10,000 पे 15% को डेट दिया है, तो कितना महीने का लेगा इंटरेस्ट? 12 महीने का, तो 1,500 रुपया होता है ना। दिस मच इंटरेस्ट यू आर सपोज टू रिसीव और यू आर सपोज टू पे। सोचो, इतना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए ना। दिस मच यू आर सपोज टू रिसीव, इन्वेस्ट किया तो मिलना चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या? चेक। वेयर डू यू चेक? Why credit side? Because that's your income. If you would have received, you will find it on the credit side. So check in the textbook. Check Srishti on the textbook. On the credit side, have you received any interest? Have you all received any interest? How much? 1,500? पूरा? अरे बाप! तो फिर कुछ मिलना चाहिए क्या? या कुछ एडवांस में मिला है क्या? तो कुछ हिडन एडजस्टमेंट है क्या? पोकर का मगज में। ओके, ये नहीं भी किया तो चलेगा, दिमाग में ओरली कर सकते हो, ऐसी मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। नहीं बनाएगा तो चलेगा। अगर हिडन एडजस्टमेंट नहीं है तो कुछ होगा तो बनाना पड़ेगा। आपको पहले से कैसा मालूम पड़ा? मेंटल कैलकुलेशन करके जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो बनाओ। तो यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं है? हाँ, नो हिडन एडजस्टमेंट। व्हाई यू गॉट इट? जितना मिलना चाहिए था पूरा का पूरा रिसीव किया। लास्ट बेंचेस मेरे को बताओ, एक और है, किस पे है? लोन पे। क्या दिया है देखो, 10% बैंक लोन। कितने का है आपका लोन? आई थिंक 21,000 का लोन है ना? नहीं, 10,000। और उसके बाजू में डेट है 1/7/2008। तो पहला स्टेप, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेट करो सब लोग, कितना महीने का लोगे बताओ? वाई 9 months? आपने कभी लिया हुआ है लोन? डेट दिख रहा है आपको? डेट 1/7 को लिया है ना? यू हैव टेकन द लोन ऑन 1st July, राइट? हेलो, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना? 9 महीना। आपने उधारी 9 महीने पहले ली थी, तो 9 महीने का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। आइडियली तो 9 महीने का करना है, तो कितना होता है? आई थिंक दिस इज 0,000,3,4 750. 750 rupees is what you are supposed to pay or what you are supposed to receive? Pay. Second step, check. Where do you check? Check on the debit side of trial balance. Please check all of you. Have you paid any interest? Huh? 500 is what you have paid. 500 is what you have paid. Can you all see that? दिखा? सबको मिला? डेबिट साइड पे इंटरेस्ट पेड, बैंक लोन का, हेलो, चेक। सो 750 लेना था, 500 दिया तो 250 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी में क्या कर सकते हो? ऐड टू बैंक। ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी में ऐड टू बैंक। बराबर है? ऐड टू इंटरेस्ट एंड ऐड टू बैंक। डॉट्स दे दो फटाफट। Put a dot on wages, put a dot on salaries.
wages 1, salaries 1, debtors में 2 dots. Why 2 dots? पहले क्या करने का और बाद में बचा हुआ अमाउंट पे NRFD. लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 1 डॉट. फिर हिडन है ना वो लोन का, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे और बैंक लोन पे. I'll repeat the dots. There are 2 dots on debtor, 1 on wages, 1 on salary, 1 on land and building, 1 on plant, 1 on interest and 1 on 10% bank loan. Right? Notes बनाया सबने? किस पे? रेंट पे. हाँ रेंट पे भी आए. 2 on debtors, 1 on wages, 1 on salary, 1 on land, 1 on plant, 1 on rent, 1 on interest on bank loan and 1 on bank loan, 10% bank. वर्किंग नोट्स किया कॉपी कर लो फटाफट. स्टार्ट करो. आई ऑल्सो सॉल्व इट. डेटर्स पे ध्यान रखना. पहले एफपीडी दिया है सब में, तो अज्यूम इट इज नील. उसके बाद एनआरडीडी करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना उस पे एनआरएफडी. गुड डेटर्स विल आस्क फॉर डिस्काउंट. So reserve for discount will be created on good debtors. What do you mean by good debtors? जो पैसा देने वाले. What is good debtors? अच्छे वाले. આ વર્ષનું દેખા ને ભાઈ, લાસ્ટ યર નું તો વયું ગયો ને. લાસ્ટ યર ના પીએનએલ માં એવી રીતના થોડી થાય કાંઈ. લાસ્ટ યર નું જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય, સપોઝ મળ્યું આ વર્ષ તો રિસીવેબલ તો લાસ્ટ યર નું થાય ને. લાસ્ટ યર ના પીએનએલ માં વયું ગયું હોય ને. નોમિનલ અકાઉન્ટ છે, એક જ વર્ષની લાઈફ. તો જે ઇન્કમ એક્સપેન્સ અહીંયા દેખાય છે એ આ જ વર્ષના હોય. લાસ્ટ યર ના તો વયા ગયા. લાસ્ટ યર ના પીએનએલ રિસીવેબલ થઈને એડ થઈ ગયું ને વયું ગયું પીએનએલ માં. कैश टू इंटरेस्ट रिसीवेबल. फाइनल अकाउंट में ना देखा ऊपर लेजर में થઈ ગયું મળી ગયું ને પૈસા. लास्ट ईयर इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, આ વર્ષે कैश टू इंटरेस्ट रिसीवेबल. री रिसीव्ड એટલે વધારે મળી ગયું. વધારે નથી. क्या बोल रहा है भाई रिवाज? रिमेनिंग कुछ भी नहीं है क्या? कुछ नहीं. हाँ तो लिख सकते. આખું લખો તો ચાલે, બાકીને નીલ કરો. અને એક જ આઈટમ છે ને, તો તું એનઆરડીડી પણ લખ. બાકી નીલ કર. तो एनआरडीडी भी लिख सकते हैं.